ವಸೈ ತಾಲೂಕ್ ಪರಿಸರದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘಟನೆ ವಸೈ ತಾಲೂಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಜೂನ್ 22ರಂದು ವಸೈ ಪಶ್ಚಿಮದ ದತ್ತಾನಿ ಮಾಲ್ನ ಅರ್ನಾ ಸ್ವರ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ 2022-24 ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ವಾಚಿಸಿದರು. ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಾಯ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಸೈ ಪಶ್ಚಿಮ ತೃಪ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲಕ ನಾಗರಾಜ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿರಾರ್ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಲಾಸೋಪಾರ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೋಹನ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸೈ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗಿ ರಾಮ್ ಮಡಿವಾಳ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ರುಮಾಮೋ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಹಾಂಗ್ ಮಾತ್ರೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕರ್ನೂರು ಶಂಕರ್ ಆಳ್ವ, ನಾಯ್ಗಾಂವ್ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಹನ್ ಚೌಧರಿ, ದೇವೇಂದ್ರ ಬುನ್ನಾನ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣನಾಥ್ ವಾಗ್ಮೋಡೆ, ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮಿತಾ ಧುರಿ, ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಾಶಿವ್ ಕರ್ಕೇರ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಪಕ್ ಗವಾಡ್ ಇವರು ನೂತನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. वसई तालुका होटल एसोसिएशन का ये मेरा सफर वसई होटल एसोसिएशन के साथ 2007 से शुरू हुआ और आज खत्म हो रहा है. मेरा प्रेसिडेंट जब हमने प्रेसिडेंटशिप ऑनर किया उस वक्त एसोसिएशन का हालत बहुत खराब था. आर्थिक हालत, तनावी हालत, हर चीज खराब था. बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था, कैश बैलेंस कुछ भी नहीं था. हमारे एसोसिएशन के ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी कट हुए थे. द पावर वॉज डिस्कनेक्टेड और ऑफिस रजिस्टर्ड भी नहीं था. और आज हम इतने आगे पहुंच गए हैं इन सालों में कि आज आपके एसोसिएशन के पास 45 से 50 लाख रुपए तक कैश है. Then we had a very good committee members with whom we sorted many problems that our hospitality industry was facing. हमने काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए. हमारे एसोसिएट इनके साथ भी आदर्श अन्ना के साथ भी हमारा अच्छा जोड़ी बनी थी. हम लोग काफी मदद इनसे भी मिला है. हम लोग को हर मीटिंग में आपको बताता हूँ हम लोग आहार के साथ है करके. और यहाँ तक और एसोसिएशन को कामयाब बनाने के लिए भी शंकरना का बहुत बड़ा सहयोग है. काफी लोगों ने इस संगठन को खराब करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए. आज इसी की वजह से आज इतने अच्छे ऑफिस बेयरर्स आप लोग को मिले हैं. ये सब रत्न है और नियम का पालन करने वाले ऑफिस बेयरर्स हैं. ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. हमारे तालुका में हम चकना बिल्कुल नहीं देते. That is our biggest achievement. All thanks to our members. And we being a part of this rural area, we also take pride that we levy VAT. हमारे यहाँ हर छोटे से छोटे परमिट रूम में VAT लगाया जाता है. So this I take pride in saying that these two things are our biggest achievement. अदरसन्ना इस चकने वाले ड्राइव पे, we call it चकना सो. चकने वाले ड्राइव पे we have been penalizing people, we have been
conducting surprise checks and surprise visits. यहाँ पे 10-10 गाड़ियाँ निकलती है, हम लोग 100 जन होटल में जाते हैं चकना चेक करने के लिए, and this we have been doing for the past 10 years, and trust me, the score is 99%. कुछ है defaulters, लेकिन the score is 99%. So this is one of our biggest achievements. बहुत सारे customers हैं जो नाराज रहते हैं, कहते हैं कि कांदिवली में नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, इतने छोटे से शहर में तुम कैसे करते हो? ये हमने किया है. All thanks to our members. DTH has also been very successful in the year 2017. आदर्श में आप जानते हो, and everybody, every designated presidents you know, कि लिखित में हमको 130 का डेडलाइन किसी ने नहीं दिया था. So मिस्टर प्रकाश हेगड़े के अंडर में हमने तहसीलदार साहब से वो लॉ एंड ऑर्डर का GR कॉपी लेके उनको हमने इतना कोर्स किया कि फाइनली he had to give us in writing, and we were the first association I think in the entire western region to have it in writing कि हमारा डेडलाइन 130 का है, and it was in Marathi. So that was also an achievement. We have been keeping our restaurants open from 2017 for until 1:30 AM. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಗತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. डियर फ्रेंड्स, आपको कोविड में जो भी रिलीफ मिला है, पहले बार में 50% लेस होके मिला, उसमें आहार, फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र और हमारे FHRAI और उसके साथ में सपोर्टिंग जितने भी एसोसिएशन हैं, सबका हमें बहुत सहयोग रहा है. आज उन्हीं की बदौलत है कि आज हम लोग अपने रेस्टोरेंट चालू कर पाए हैं. प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन बड़ी संगठन के लिए. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾರ್ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಹಾರ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರ್ಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಠಾಣಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೊಲ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವಿ ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕಳ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸೈ ತಾಲೂಕು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. मैं भी आज फेडरेशन का होटल फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना. मुझे अध्यक्ष बनने के लिए जो काबिल मुझे बनाया, इस वर्ष तो होटल एसोसिएशन बनाया. तब मैं अध्यक्ष बना था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, माइक पकड़े बात करने को मालूम नहीं था, किसको क्या बोल के मालूम नहीं था. लेकिन सभी होटल का मेंबर उस टाइम को भी सभी लोगों को प्रेरणा दिया, आप ले लो, हम लोग आपका साथ में. बात एक बात बोलता, कभी भी आप लोगों को बोलता हूँ, सभी लोगों को, कभी भी एक जगह में आने के लिए डरने का नहीं, बिंदास आ जाने का. अपने आप आपने उन्नत हो जाते हैं, बात करने को आता है, सब कुछ जाता है, धैर्य आता है ना आदर्श. इसलिए सभी यंग स्टाफ लोग इस बार जो लिया पूरे यंग लोगों को दिया, बहुत अच्छा कमेटी बनाया है. अभी और भी अपना होटल एसोसिएशन का ताकत बढ़ेगा, क्योंकि सब यंग लोग हैं. लेकिन मेरा खास करके आज ये प्रोग्राम में आने का, नागराज आना मेरा खास करके कारण था, प्रकाश आना मेरा खास करके कारण था आप लोग को थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि जो आप लोगों ने इस तरह उस समय आहार का साथ दिया, आहार का हाईवे बैन के बारे में हो या GST के बारे में भी हो, क्योंकि आहार ने उस समय पे एक स्टैंड लिया था कि पूरा महाराष्ट्र को साथ में लाना था. पूरा महाराष्ट्र आज भी आहार के साथ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आदर्श शेट्टी के साथ में जरूर है. हम जब कभी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं, आज भी हम वही उसी तरह से हैं. हम लोग जैसे अमित ने कहा, वेस्टर्न महाराष्ट्र से, विदर्भ से हो या मराठवाड़ा से हो या कोंकण से हो, सारे लोग बोलते थे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है महाराष्ट्र, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है महाराष्ट्र, पूरा सब कुछ साथ में लाना. लगभग वेस्टर्न इंडिया ने तो बोला हम कर ही नहीं सकते. हमने उसका बेड़ा उठाया, सबको साथ में लाया, लेकिन एक चीज है, जब भी अभी जैसे
प्रकाश अन्ना के बारे में कहा, नागराज अन्ना के बारे में कहा, शंकर अन्ना ने कहा। जब आदमी निस्वार्थ तरीके से काम करता है ना, जब ये सोच के काम करता है कि अपने मेंबर्स का काम होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी उसको तथास्तु बोलते हैं, और वही हुआ हमारे साथ। To be the part of this program, we are really impressed by the activities of Vasai Taluka Hotel Owners Association, and I am sure that the association Mumbai का, महाराष्ट्र का, आउट ऑफ 54 एसोसिएशंस, ये एसोसिएशन हर एसोसिएशन के लिए एक रोल मॉडल होने का कैपेसिटी है। ये एसोसिएशन को मैं समझता हूँ। शंकरना हैज laid a strong foundation for this association, and वो जो एसोसिएशन का पंचांग को प्रेजेंट जो मेंबर्स जो है, कमिटी मेंबर्स, प्रेसिडेंट नागराज अन्ना एंड अदर सक्सेसफुल मेंबर्स, दे हैव मेड इट स्ट्रॉन्गर एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। फिर एक चीज बोलना चाहूंगा विच इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि एक आदर्श दुनिया में फ्रैंकली एक एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम कर क्या रहे, अपनी रोजी रोटी कमाने का व्यापार कर रहे हैं, राइट, काम करना है, बट अपनी रोजी रोटी कमाने तक के लिए भी हमें फाइट करना पड़ रहा है, और इसीलिए एसोसिएशन की जरूरत है। और इफ वी हैव टू फाइट, देन वी विल फाइट एंड वी विल मेक श्योर दैट ओके वी गेट आवर राइट्स, एंड वी हैव डन सो, एंड अ बिग हैंड राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट एसोसिएशन कमिटी मेंबर्स, टू ऑल ऑफ अस। हर बार हम लोग को सपोर्ट अच्छे से मिला, गाइडेंस मिला, और हम लोग भी उधर से हमारा कल्याण, डोंबोली, उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ और भिवंडी, ये सब हम लोग एक तरीके ऐसे ही हम लोग ज्वाइंट ये करने को लगे, तो सब अभी एक प्लेटफॉर्म पे आने लगे हैं सब। तो ऐसे ही अभी वसई तालुका, तुम लोग का भी हम लोग का सपोर्ट पहले भी है, प्रीतम जी से हमेशा ये होता है, और हम लोग का आगे भी सपोर्ट सब आप लोग के साथ में रहेगा। आदर्श का हम लोग सब वो टाइम में वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन अभी का हाथ बहुत आदर्श में चंद्रसेना के टाइम में हाथ बहुत स्ट्रांग हो गया है। अभी हम लोग सब फेडरेशन, अभी मैक्सिमम फेडरेशन हो रहा है, ये अपना होटल एसोसिएशन हो रहा है। अभी महाराष्ट्र का सब एसोसिएशन फेडरेशन का साथ में मिलके, फेडरेशन वालों भी साथ में रहना मांगता है, सबके साथ में। होटल एसोसिएशन अपना सबका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का साथ में काम करेगा, तो हम लोग को होटल का सब प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। सबको मैं विश करता हूँ। मेरे पिताजी ने एक 60-65 इयर्स बैक होटल चालू किया, आज मैं वो चला रहा हूँ। होटल वालों का तकलीफ मुझे मालूम है। किसी को लगता है ये बहुत बड़ा होटल देखे, लेकिन उसके अंदर की तकलीफ किसी को मालूम नहीं रहता। जो बाहर से देखता है उसको होटल बड़ा दिखता है, लेकिन उसके अंदर की तकलीफ किसी को मालूम नहीं रहता है। वो तकलीफ सॉल्व करने का जिम्मेदारी होटल एसोसिएशन ने लिया। वन ऑफ द बेस्ट होटल एसोसिएशन वसई तालुका होटल एसोसिएशन। अपना होटल वालों के लिए आप ग्रुप में देखोगे, कोई तो भी चकना देता है, तो उधर जाके सब होटल वालों के लिए जाके झगड़ा करते हैं, संबंध खराब करते हैं, खुद का संबंध खराब करते हैं। लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि मेरा सम्मान खराब है, लेकिन होटल वालों का भला हुआ उसी में उनका खुशी रहता है। आई वंस अगेन विश देम बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को मालूम है कि फेडरेशन कौन से हालत से चालू हुआ था। एनडी शेट्टी साहब ने जो है तुम्हारा 1996 में इसको चालू करके एक प्लेटफॉर्म आपको महाराष्ट्र के लेवल पर हम लोग को भेंट करके एक बहुत बड़ा उन्होंने काम करके हम लोग को दिया। फिर बीच में काफी जो है तुम्हारा प्रगति हुआ। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महाराष्ट्र लेवल पे होटल एसोसिएशन के कई अनगिनत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी सक्षम रहे, लेकिन बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होकर थोड़ा ढीला गिर गया। ये बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये स्टेज से सबको ये बात सूचित करता हूँ
कि जब जब बारी संभाला है शंकर अन्ना ने, जो जो संस्था को उन्होंने लीड किया है, कुछ ना कुछ उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा ही हुआ है। और ये फेडरेशन को भी, जो बारी अभी फेडरेशन प्रेसिडेंट बनकर जो तुम्हारे इस प्लेटफॉर्म को भी चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे, आप लोगों के आशीर्वाद से होटल के एसोसिएशन के अपने पूरे महाराष्ट्र में जितना हो सके उतना हम लोग काम करके सक्षम तरीके से हम लोग आप लोगों को काम करके देंगे। ನೂತನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮಿತಾ ವೈ ಧುರಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. I lost my father at a very young age and that was the moment जब मेरे को ऐसा लगा कि you have to stand for yourself because male हो या female, जब responsibility आता है तो तुमको खुद से लेना है. So that was the moment which inspired me that I don't want to feel helpless anytime. So that was the reason I am standing here today. So thank you so much for giving me this opportunity. And ये सबको बोलना चाहूंगी कि आपका बेटा हो या बेटी, उसको आगे बढ़ने दीजिए और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दीजिए because it is very important कि you need to stand for yourself. I am very glad to member of the committee member, जो उन्होंने मतलब लेडीज को पहले तो अप्रिशिएट किया और हर मीटिंग में मतलब वो मिलके सब काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कुछ भी डिसीजन हो वो इन्वॉल्व करते हैं. दैट इज वेरी गुड एंड मैं आगे भी मतलब ऐसे ही हेल्प करना चाहूँगी और सबको सपोर्ट करना चाहूँगी. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ವಸೈ ತಾಲೂಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವೆ ಎಂದರು. तालुका होटल एसोसिएशन मैंने 2007 में ज्वाइन किया. इससे अच्छा शंकर ने मुझे जबरदस्ती ज्वाइन कराया. ये सबसे अच्छा पड़ता है वो. तो मुझे एक नॉर्मल मेंबर था मैं, और मैं एक ग्राउंड लेवल का कार्य करता हूँ और मेरा काम देखकर ही शंकर ने मुझे चॉइस किया था. और प्रकाश हेगड़े सर जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो मुझे उनके साथ में हमारा बचपन गया है. तो मुझे शंकर ने चॉइस किया था कुछ पद देने के लिए. तो हेगड़े साहब को ऐसा लगा कि लड़का क्या काम करेगा, तो इसका क्या है, तो कोई सीनियर आदमी को ले लेना चाहिए था. ये सब उन्होंने शायद बोला था उस टाइम. तो मुझे मेरे कान पे है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, तो शंकर ने प्रकाश हेगड़े साहब के लिए मैंने घर की मुर्गी था, तो उन्होंने मुझे ये शब्द कहा था, मुझे कान में है. ठीक है, अच्छा ही बोला था उन्होंने, कोई गलत नहीं. मैं छोटा था और शायद उनको उम्मीद कम था मेरे से, और मैं 5 मिनट सोचा अगर हेगड़े साहब ये बोला है तो भी सही है. तो हेगड़े साहब को चाहता क्या चाहिए उनको, तो काम. ठीक, शुरू करते हैं. तो उस दिन जो काम शुरू किया है, तो मेरे लेवल पे शायद ऐसा लगता है कि 98 या 97% लोगों को मेरा काम पसंद आया है. और मैं और आप लोगों को जुड़ने में, अदर एसोसिएशन के साथ में मिलकर काम करने में, प्रीतम हाईवे उस टाइम आपको जंगल लगता था. प्रीतम को मैंने पकड़ कर लाया हूँ. उन्होंने अलग शब्द में बोला है, प्रीतम को मैंने इसके होटल पे जाकर पकड़ के लाया, वहाँ से सब काम करते एसोसिएशन आ जाओ. और एक एक मेंबर के साथ पर्सनली जाके, हम आजकल व्हाट्सएप का मैसेज डालते हैं, ऐसा उस टाइम नहीं, हम पर्सनली मिलते थे, उनके काम करते. और काम करते करते हमारे मेंबर लोगों ने, हमारे भाई लोगों ने इतने साथ दिया, तो हमारे और उम्मीद बढ़ते गई हमारे काम करने की. और आज एज ए कमेटी मेंबर, ट्रेजरर, उसके बाद सेक्रेटरी बन के मैंने काम किया है. अब तक पहुंचा हूँ, काम किया हूँ. अगर इस टाइम पे 1, 2, 3 ड्यूटी मैंने जो आपके सामने किया, अगर उसी में आप किसी को तकलीफ पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था हमारा कि हम सबको
एक तक के लिए चलाना और एसोसिएशन को एकत्र बना शक्ति बनाकर, अगर एसोसिएशन हो, इंडस्ट्री हमारी कुछ तकलीफ तक चल रहा है, हर डिपार्टमेंट को हमारी तरफ गलत नजर से देखता है, तो हमारी जो होना नहीं चाहिए हमारे साथ में वो व्यवहार करते हैं वो लोग, तो इनको कंट्रोल करने में क्या अलग अलग कस्टमर के आजकल आप देख रहे हैं, मीडिया वाले को देख रहे हैं, सब लोग हमारे तरफ दबाने की कोशिश करते हैं। अगर इन सबको कुछ कंट्रोल करना है, एसोसिएशन को, हमारे इंडस्ट्री को बचा के रखना है, तो हमसे एक साथ में रहना है। और मेरे हिसाब से तो वसई तालुका होटल एसोसिएशन के सभी मेंबर मेरे तरफ साथ है। 1 या 2% लोग नहीं रहे, दूर रहे, तो उनको भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप एसोसिएशन के साथ में जुड़ जाइए। एसोसिएशन में सबकी भला है, जितना सिर्फ मंच पे बैठने वाले नहीं, आप सभी की भलाई है। इसमें एक साथ मिलकर काम करेंगे और इसमें 100% भलाई होगा। आगे चलकर भी आप लोगों ने मुझे जो भरोसा दिखाया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मुझे शक्ति दे और मैं आपके इससे अच्छा भी काम करके दिखाऊं। ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಉಪನಗರಗಳ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಸೈ ತಾಲೂಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯೋಗಿತಾ ಶಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿದರು. ವಸೈ ತಾಲೂಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋಟೆಲಿಗರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ವಸೈ ತಾಲೂಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೈದು ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವರು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಸೈ ತಾಲೂಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು. ಯೋಗೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಜೊತೆ ವಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್.